Assalamu alaikum, Rimsha. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam. Thank you so much for inviting me. I'm pretty much sure ये Yeah. हमारा conversation काफी time से रहा, then I'll be traveling और काफी सारी चीजें Hmm. रही, but I'm happy that we are having this session. And before we start with the topics and the discussion, I wanted to just कि आप अपने आप को introduce करें, where are you working right now, what's going on, ताकि लोगों को पता चल सके कि what's going in Rimsha's Iqbal life. So then we start with the session. Okay. So for now, I am currently working in Nahid as a senior brand executive. I have 3+ year experience, more than 3 years, working in retail industry. Retail industry में किस तरह आई क्या था, it's a long story, but I will do my best कि मैं इसको थोड़ा summarize करूँ. So yeah, my educational background, it was like bachelor's in engineering. Then bachelor's in engineering. After that, I had a job, uh, like completely a tech side. So yeah, it was like that. By the way, I am a working mother, so I have a 2 kids as well. So along with that, I have completed my MBA. Then I entered to the retail industry. I started as a marketing person working in retail industry, understanding the dynamics of the store and the online as well. So when I entered to the Nahid, तब जाके मुझे एक स्टोर एक्सपीरियंस तो था, स्टोर की मार्केटिंग, द बीटीएल कॉन्सेप्ट, द स्टोर ब्रांडिंग, द एक्टिवेशन प्लान फॉर द स्टोर supermarket. So I had everything, like I have learned everything which I can explore in the supermarket side or top typical retail industry. But after that, जब मैं नाहिद पे आई, so it was really a great learning experience. I joined Nahid as a key accounts manager. Then I like I was looking the health and beauty and the grocery category, especially. And if you talk about the health and beauty and the grocery category, so you have to deal with the big brands like big names, L'Oreal Professional and Unilever and the Coke and the Pepsi. So you have multiple brands on board, and you have to cater them with your creativity and with your strategy कि आपको हर ब्रांड को उनकी एक जो है अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक पिच, उनकी एक जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे उनको किस तरह से शो कर रहे हो, वो एक डिफरेंट होता है। हर ब्रांड टू ब्रांड आपको अपनी स्ट्रैटेजी ट्वीक करनी होती है। सो या अगर इस साइड के बाद आई स्टार्टेड इन सीनियर ब्रांड एग्जीक्यूटिव इन नाही, सो आई कैन combine my both of the experience, retail side and the digital side. So this is my short introduction, Thank and you, thank you so much, yeah. Vimsha, for telling me the overall story. And it's a good thing that what you highlighted, because a lot of time nowadays in Pakistan, people usually don't understand कि ठीक है digital तो हो गया है. Everyone is Mhm. now on digital platform, but we still have that thing कि नाहीद हो गया, इम्तियाज हो गया, ये कुछ platforms थे जिन्होंने ये बताया कि भाई ठीक है, we are not only a grocery store, we are a one-stop solution. You can be buying your grocery, you can be buying your clothing, you can be buying your beauty accessories and vice versa. As a matter of fact Exactly. कि अभी जो आपने चीजें बताई उससे दो तीन चीजें तो बहुत important निकलती हैं. Number one is I'm seeing a lot of people now when I'm having sessions, so a lot of people are doing graduation in a very different field and they are starting ending up doing a job in a very different field. So Mhm. as a matter of fact कि क्यों इंजीनियर नहीं बन पा रहे, व्हाई इंजीनियर्स आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट इससे एक और चीज भी निकलती है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्या काम करते हैं. With respect Mhm. to you, your background is from engineering, and you just shared कि आपने अपने दोनों बच्चों को संभालने के साथ साथ you have done your masters and then you started your overall job, and I'm pretty much sure कि वर्किंग इन द फील्ड वेयर आपको डिजिटली बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, सो इट्स लाइक ऑन योर टोज एवरी टाइम एंड Yes. मैनेजिंग Exactly. लाइफ. तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि देर आर लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ वुमेन्स हु थिंक यार नहीं है, हमारे तो बच्चे हो गए और अब हम क्या करेंगे. तो जस्ट फॉर देम, व्हाट्स योर साइकिल इज ऑल अबाउट, आप किस तरीके से काम करते हो, आप रिमशा इकबाल फंक्शन कैसे करती हैं, लाइक इट्स अ रूटीन दैट यू फॉलो, हाउ यू फॉलो इट, एंड इज देयर एनी टिप्स और ट्रिक्स
जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ साथ काम कर रही होती हैं, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द वेज कि यार ठीक है यार, हमें काम को भी फोकस करना है एंड देन वी नीड टू इंटीग्रेट द फैमिली एज वेल। तो व्हाट्स योर रूटीन, हाउ यू मैनेज ऑल दिस, ताकि इससे कोई ना कोई टिप्स तो मिले इन लोगों को, देन वी मूव टुवर्ड्स Sure, अनदर why? वन। Sure, I want to, tell you my story. Like when I started MBA, so it was when I left my job, like first job जो engineering की थी. So I thought that कि यार ठीक है मैंने engineering कर ली है, but somehow there is a lackness. There is a like मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अभी वो achieve नहीं किया जो मुझे achieve करना था. Then I started MBA. ठीक है, मेरी एक मोटिवेशन मुझे मेरे हस्बैंड से भी मिली. ही इज लाइक ऑन मार्केटिंग साइड, सो उन्होंने मुझे एक थोड़ी सी इंसाइट शेयर की. सो आई थॉट दैट कि यार ओके ठीक है. देन आई रिसर्च माई अबाउट माई सेल्फ एंड द इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि हमारे ग्रेजुएट्स को पता नहीं होता. वो लाइक एक वो कहते हैं ना, एक नॉस्टैल्जिया चला आ जाए, और एक है कि फैमिली यही बोलती है यार डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, या डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ. सो वो हमारे ग्रेजुएट्स को पता नहीं होता है. हाँ ठीक है, हम डॉक्टर कर लेते हैं, बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं. उसके बाद क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या है, कौन सी न्यू इंडस्ट्री आ रही है, वी डोंट नो अबाउट दिस. ज़्यादातर हमारे ग्रेजुएट्स को नहीं पता था. सेम एज विद मी, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही थी जो इवॉल्व हो रही थी. बट आई डिडंट नो दैट कि ठीक है ये भी एक इंडस्ट्री है, लाइक रिटेल इंडस्ट्री. व्हेन आई स्टार्टेड मुझे उससे पहले नहीं पता था कि रिटेल इंडस्ट्री ऐसी कोई इंडस्ट्री है, एंड देयर इज अ opportunities over there. You can explore your strength in marketing side as well. So when I started MBA, so I thought that कि हाँ निमिषा ये फील इंटरेस्टिंग है, एंड आप इसी के लिए बने हो. सो ये रियलाइज करना दैट you are what is your strength, what is your willingness, क्या आपको चाहिए एटलीस्ट जो आपको मतलब एक कंप्लीट कर रही है, आपके पैशन को क्रेजी कर रहे हैं. सो जब मैंने ये इंडस्ट्री में एंटर किया तो आई थॉट दैट कि हाँ दिस इज द इंडस्ट्री एंड दिस इज द फील्ड, आई कैन डू दिस. बट ये मैंने बहुत अपनी अर्ली टाइम में ही इसको रियलाइज कर लिया था कि नाउ आई कैन स्विच माई फील्ड. और ये एक रियलाइज करना एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारी एक वो बनता है कि हमें ये हमारी यूनिवर्सिटीज स्पेशली उनको ये बताने की ज़रूरत है, और बच्चों को जो नए ग्रेजुएट्स यूँ फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बाहर क्या-क्या है. एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी, स्विचिंग इन द डिफरेंट फील्ड, स्विचिंग इन द डिफरेंट इंडस्ट्री. अलोंग विद दैट आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स. सो सॉरी टू से बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं वुमेन एम्पावरमेंट, बट नो, देयर इज नो वुमेन एम्पावरमेंट. व्हेन यू एंटर टू द मार्केट, तो देयर इज अ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको even you have the ability or something, but वो आपको मौका नहीं देना चाहते. So it's very tough for those women who are are working mother especially, जो क्या फैमिली भी मैनेज कर रही हैं एंड जॉब भी मैनेज कर रही हैं. सो रोज आना ना कुछ एक ना एक छूटता ही है. देयर इज नथिंग वी कैन कंप्लीट एट द सेम टाइम. एंड वन टाइम मैं ये नहीं कह सकती कि रोज जो है मैं सब कुछ कर लेती हूँ. किसी दिन मे बी हो सकता है कि मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मे बी हो सकता है कि मैं अपने किड्स को जो है प्रॉपर केयर नहीं कर पाई, वो बीमार हो गए. किसी दिन स्कूल छूट गया, किसी दिन मेरी जो है पिक एंड ड्रॉप जो है मुझसे मिस हो गई. सो देयर इज अ मल्टीपल थिंग. किसी दिन मैं जो है डिनर प्रिपेयर नहीं कर पाई. सो देयर इज अ मल्टीपल थिंग जो एक प्रोफेशनल वुमन की लाइफ में होता है. आपको कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, बट व्हाट्स मैटर इज दैट की कंसिस्टेंसी. मैं हमेशा कहती हूँ सक्सेस इज नॉट लाइक दैट कि आपने सब कुछ कर लिया एंड आप बैठ गए, या फेलियर इज नॉट लाइक दैट कि आपने सब कुछ कर लिया और आप फेल हो गए तो आप बैठ गए. नो, सक्सेस इज दैट टू बी कंसिस्टेंट. आप कंसिस्टेंट हो, आपने अपनी चीजें छोड़ी नहीं. एक गोल सेट है कि आपने, क्योंकि दिस इज द लाइफ टाइम, यू कैन नॉट से कि मैं प्रोफेशनल रह सकती हूँ या तो मैं एक हाउस वाइफ रह सकती हूँ. और इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान के अंदर नो, यू कैन नॉट से दैट. सो इट्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी एक chaos होता है. बट यस, as a professional woman, I do believe as a woman we have lot of strength. हम सब मैनेज कर सकते हैं
इट्स ओके अगर कुछ एक दिन छूट रहा है, बट डू नॉट लीव योर योर गोल्स एंड ड्रीम्स एज वेल. हम समटाइम्स अपने गोल्स एंड ड्रीम्स छोड़ देते हैं, समटाइम्स फैमिली छोड़ देते हैं. वी हैव टू मैनेज दीज थिंग्स. सो दिस इज द थिंग जो ये मेरी एक जो स्ट्रेंथ है रहती है कि हाँ ठीक है आज ये छूट गया, कल मैं इसको करूंगी. इट्स Okay. ओके. Uh, बी कंसिस्टेंट. agree, totally agree, and it's very much understandable that when you're working in the economy system, जहाँ पे आपको अपना money management भी देखना होता है, you need to also understand that every girl should also have their own perspective in their life. And as a matter of fact, कि मुझे ऐसा लगता है कि यार हर बंदे की अपनी एक पर्सनालिटी होती है. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर मेल पर भी होती हैं तो फीमेल पे भी शायद उतनी होती हैं. एंड इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपका सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है और आप किस तरीके से उसको लेके चलते हैं. थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लॉट ऑफ पीपल थिंक यार नहीं हम तो नहीं कर सकते. एवरी वन कैन डू इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकें. सो नंबर वन. नंबर सेकंड एग्जैक्टली. दैट आई वांटेड टू डिस्कस कि you been working in Naheed for more than a year now, ठीक है. हाँ. एक सवाल लोगों का ना काफी रहता है यार. a lot of times people think कि टिल कितना भी बेहतर हो जाएगा, it's a सेठिया कंपनी. And I wanted to know the real inside how these companies are working, because what I'm seeing right now, they are having their overall HR, they are having their overall organizational thing, ठीक है. And as a matter of fact, एक कंपनी की जितनी इंपॉर्टेंस एम्प्लॉयमेंट में होती है उतनी इंपॉर्टेंस ये भी होती है कि उसका वर्क कल्चर कैसा है. ठीक है. ओके. सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव व्हाट डू यू थिंक कि आपका आपका वर्क कल्चर कैसा है. वर्क कल्चर कितना सपोर्टिव है और वर्क कल्चर कितना मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग योर 8 hours a day and sometimes more than that, investing more time in your company rather than in your family, you need to understand कि यार वर्क कल्चर बहुत जरूरी होता है. ठीक है. आप जहां भी काम कर रहे हैं, अग्री. इज इट समथिंग जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. इज द एम्प्लॉयर समथिंग जो कि आपकी इम्पोर्टेंस समझता है, आपके प्रॉब्लम्स को समझ रहा है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट्स योर ओवरऑल वर्क कल्चर लुक लाइक नाहिद का, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इट्स नॉट जस्ट अ ग्रोसरी स्टोर. क्योंकि लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि नाहिद हो गया, इम्तियाज हो गया, एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ बिग स्टोर्स गोइंग अराउंड इन पाकिस्तान. तो यार वो ग्रोसरी तो बेच रहे हैं, उसमें क्या ही एचआर होगा. वो ग्रोसरी तो बेच रहे हैं, क्या ही मार्केटिंग होगी. हर बंदा जाता है ग्रोसरी करता है. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्क कल्चर फर्स्ट, देन वी डिस्कस अबाउट फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग टू मार्केटिंग प्लान एंड एवरीथिंग. Sure. Acha, first of all, the thing is, when we talk about the Naheed and the Imtiaz, Naheed जो है अभी डिजिटली बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली ई कॉमर्स पे, एज कम्पेयर टू अदर जो रिटेलर्स हैं जितने भी सुपरमार्केट्स हैं. सो या इसमें ये चीज़ है कि इफ वी टॉक अबाउट द वर्क कल्चर एंड द द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अमेजिंग. फॉर मी, लाइक एक वर्किंग मदर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ वो अपने 8 to 9 आवर्स, और रिटेल इंडस्ट्री में तो मैक्सिमम मोर देन 9 आवर्स भी देने पड़ते हैं. रिटेल इंडस्ट्री इज नॉट इजी एज, बट येस, द प्रोसेस, द वर्क कल्चर इज सो गुड. इट्स वेरी काम एंड पीस प्लेस जहाँ पे आप फोकस होके काम कर सकते हो. एंड द अपॉर्चुनिटी इज दैट जो मैंने एक्सप्लोर किया मल्टीपल, जो हमारी अभी तक अपॉर्चुनिटीज मैंने एक्सप्लोर की हैं कंपैरेटिवली और ऑर्गेनाइजेशंस में. I stayed in Nahid and more than a year. Like I'm sure कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो स्पीच है यहाँ पे एंड जो अथॉरिटी आपको दी जाती है टू एक्सप्लोर योर आइडियाज, टू एक्सप्लोर योर आउट ऑफ द बॉक्स, आपको जाके काम करना है, यू कैन डू इट एज वेल. वो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है. व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई सुने, एक्चुअली में आपको सुने. सो या आई एम डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू COO, देन आई एम रिपोर्टिंग टू ब्रांड मैनेजर. सो दे बोथ आर सो कोऑपरेटिव. उनका एक पूरा हमारी एक हायरार्की है, देन वी आर फॉलोइंग दिस हायरार्की. बट ऐसा कभी नहीं होता कि आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रांड मैनेजर. नो,
I'm I can go to the COO and I can go to the director as well, जो हमारे सेठ हैं, जिन्हें हम सेठ कहते हैं, एंड ही इज़ वेरी हम्बल कंपैरेटिवली. मैंने और भी ऑर्गेनाइजेशंस में सेठ के साथ काम किया है, बट ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन. एंड यस, मैं कहती हूँ कि सेठिया सिस्टम बहुत होता है वर्स, बट मैं बताऊँ मेरे केस में आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी लाइक जो ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं अगेन कि वुमेन एम्पावरमेंट. नो, मुझे अल्टीमेटली जो ऑप्शन मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो स्टेट से ही मिली है. सो Perfect. आई कैन से दैट नाहीद इवॉल्व्ड इटसेल्फ, यू नो, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने अपने आप को नाहीद सुपरमार्केट से देन नाहीद डॉट पीके पे लेकर आना. ठीक है, नाहीद डॉट पीके के साथ अलॉन्ग विद द मल्टीपल ब्रांड्स, अ ह्यूज पोर्टफोलियो ऑफ द ब्रांड्स इन एवरी कैटेगरीज, वन स्टॉप शॉप आप कह लें. सो every category: health and beauty, grocery, fashion and appliances, home and lifestyle, everything. We explored every categories in Nahid. और उसके बाद उस उनकी एक कहते हैं ना 50 more than 50 years की एक जो है हार्ड वर्क है. उसके बाद एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाना एंड पूरी हायरार्की. सो आई फाउंड नाहिद एज अ वेरी गुड ऑप्शन. और मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हाँ, अब तक जो मैंने काम किया है, चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं. बट यस, वहाँ पे कुछ लोग भी इस तरह होते हैं जो आपके काम को जो है ना मुश्किल कर देते हैं. सो यू हैव टू डील विद देम बहुत वाइजली, क्योंकि मैं खुद कहती हूँ मैं कि पॉलिटिक्स आनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं आती. तो या तो आप 2 चीज़ें कर लो, या तो आप पॉलिटिक्स सीख लो, या तो आप काम करना सीख लो. तो मैंने दूसरा ऑप्शन किया, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती थी, मैंने काम करना सीख लिया. सो ठीक हो गया. दिस इज़ द थिंग. थैंक हाँ. यू फॉर हाईलाइटिंग दिस, क्योंकि ये डिस्कशन या ये पॉइंट इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो अंडरस्टैंड कि एक एक ब्रांड को ग्रोसरी स्टोर से उठा के एक हुँ. एटलीस्ट नेशनल ब्रांड बनाने के लिए मल्टीपल आउटलेट्स, लीडिंग अ प्रॉपर टीम, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि हो सकता है किसी कंपनी के अंदर अगर सेठिया सिस्टम है एंड दे आर फॉलोइंग डिफरेंट हिरारकीज, बट दे आर स्टिल कंपनीज जिन्होंने जो स्टैंड अलोन खड़ी हुई हैं. नाउ दे हैव अ वेरी बिग मास रिक्रूटमेंट थिंग. अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग विद देम, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर वर्किंग विद देम. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे आपने अभी बताया कि हुँ. व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ब्रांड साइड, जहाँ पे आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू, कि वो लॉरियल हो या वो कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रांड टू ब्रांड आपको बात करनी आनी चाहिए. देन देयर इज डिफरेंट पॉलिसीज कि आपकी एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे, हायरार्की कैसी, एंड इट्स गुड टू नो दैट नाहीद इज फॉलोइंग दैट. आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे उन्होंने अभी ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर लाया, क्योंकि अ लॉट ऑफ बिजनेस आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ई कॉमर्स थिंग. अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि यार ठीक है, और किस तरीके से ग्रोसरी घर पे पहुंचाई जा सके, आप किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं. एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज डूइंग दैट. नॉट ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसमें लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर उनके बिजनेसेस हैं तो वो अपनी भी वेबसाइट्स, अपनी भी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हो गई या जो भी चीज़ें हम बना रहे होते हैं. So it's good to know कि नाहीद follow this thing, and employees और इन सब के लिए opportunities हैं. That comes to another thing. Let's get back to some educational background. To the people who are recently graduating, ठीक है? And I personally believe that universities do have roadmaps related to their education. कि यार आपको ये course करना है, फिर आपको ये course करना है, then you will be graduating. But there are still a number of people who are who is struggling to get a good job. ठीक है? What I personally believe कि नौकरियां हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी, ठीक है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको सिर्फ ये देखना होता है, आर यू केपेबल इनफ और डू यू हैव दैट डिसेंट नॉलेज अबाउट दैट स्पेसिफिक थिंग. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वी डू हैव मल्टीपल जॉब टाइटल्स ओपनिंग, बट द जॉब डिस्क्रिप्शंस आर टोटली डिफरेंट. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आप उस फील्ड से रिलेट करते नहीं करते, एंड यू बीइंग वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट्स योर की पॉइंटर्स कि यार आपको कोप अप रहने के लिए इन चीज़ों में तो इन्वेस्ट करना चाहिए. Either it's about learning, it's about learning new skills, क्योंकि now a lot of things are coming day by day. ठीक है, एआई आ रहा है, एआई के टूल्स आ रहे हैं, डिजिटल की तरफ बहुत सारी चीज आ रही हैं. क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव, पहले शायद
डिजिटल में सिर्फ ये होता था कि यार ठीक है आपको फेसबुक पे एड्स लगाने चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस नाउ। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से मार्केट रीच करोगे, किस तरीके से आप ब्रांड की जो है क्या कहते हैं ब्रांड की व्यूअरशिप बढ़ाओगे। ठीक है, सो व्हाट्स द की पॉइंटर्स इन योर वे कि यार आपको ऐसा लगता है ये कुछ चीजें लोगों को फॉलो करनी चाहिए दैट कैन हेल्प देम इफ दे आर ग्रेजुएटिंग और रिसेंटली ग्रेजुएटेड। ओके, सो द रोड मैप इज दैट कि अगर ये तो बिल्कुल अग्रीड कि हमारे स्टूडेंट्स के पास जो है होता है फॉर द एजुकेशन। जो मेरे इंसाइट्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you should have a good communication skills. This is very key part। और इसको मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि अगर आप बता नहीं सकते ना अपनी बात तो आप समझा भी नहीं सकते। जब आप you cannot tell them what you want to tell them, what you have idea, what you have strategy, अगर आपको वो इंटरप्रिटेशन अच्छी नहीं करनी आती है। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो बेसिक हमारी स्टार्ट यहाँ से होती है कि you need to work on your communication skills. Then you have, then you need to research on your dreams. First of all, हम ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े देखते हैं कि ये कर लेंगे और इस कंपनी में चले जाएंगे और हम मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर लेंगे, बट ऑन व्हाट बेसिस? You need to research on these aspects as well कि ठीक है अगर मैं let's suppose if I want to be a marketer or want to be a marketing person, so मुझे कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस और किस चीज़ों पे जो है अपनी वर्किंग करने की ज़रूरत है। मे बी आई वॉन्ट टू बी अ सोशल मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया मार्केटर, मे बी आई वॉन्ट टू बी अ डिजिटल मार्केटर, आई वॉन्ट टू बी अ कन्वेंशनल मार्केटर। सो दिस द थिंग्स आपको सर्टिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। येस यू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री, बट व्हाट एड ऑन क्या है आपके पास? What is extra that you can put or in your work, और किस तरह आप उसको शोकेस कर रहे हो? So this is the important thing, communication skills and the certifications, relevant certifications जो आप अपनी फर्दर इंडस्ट्री में जहाँ पे आप करना चाहते हो। एंड स्टिल्स आपका कौन सा और पार्ट है जहाँ आपको लगता है कि मुझे ठीक है मैंने एक्सप्लोर किया। बहुत सारे लोग होते हैं इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो 40 साल से वही कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया। कुछ रीसेंट जो चेंजेस आई जो अडेप्ट करना था वो नहीं किया उन्होंने। लेट्स सपोज ठीक है उन्होंने जो है वो आज तक एक्सेल पे ही बैठे रह गए। एक्सेल पे उसके बाद उन्होंने जो है पावर बीआई पे काम करना है, उस तरफ नहीं गए, उस तरह अडेप्ट नहीं किया। आपके एआई टूल्स आए, उस पे आपका एक एज अ मार्केटर यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, टू एंगेज योर कस्टमर, टू ग्रैब योर कस्टमर, आपकी एक स्ट्रैटेजी सॉलिड होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी जो आपकी इमोशंस पे बेस हो, बट उसमें जो आपकी वो कहते हैं ना अट्रैक्शन, मीडियम ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, वो आपका समहाउ रेलेवेंट एआई से इतना हो कि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ना एक आपका जो कहते हैं ना टॉप ऑफ द फनल से लेके द बॉटम ऑफ द फनल फ्रॉम अवेयरनेस टिल कन्वर्जन, वो सारे जो है बॉक्सेस को टिक मार्क कर रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ग्रेजुएट पर्सन। अगर आपको सोशल मीडिया में जाना है तो यू नीड टू नो कि यार मेरी इंगेजिंग जो है एंगेजमेंट किस तरह की पोस्ट और कंटेंट से बढ़ सकती है, या मैं किस तरह की इंगेजमेंट एक्टिविटी रखूं कि मेरी फॉलोअरशिप या व्यूअरशिप बढ़े। इसी तरह अगर आप कन्वेंशनल साइट पे जा रहे हो तो आपको यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि मैं ऐसा क्या करूं बीटीएल में, या इस तरह की क्या ऑफरिंग्स होनी चाहिए जिससे मेरा जो कस्टमर है वो वहीं पे स्टे करे, और वो उतना जो है पूरा ओवरऑल बास्केट साइज जो उसका है वो किसी तरह मेरी उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से जो है ग्रोथ कर दे 50%, जितना भी परसेंट 30%। तो दीज थिंग्स एज अ ग्रेजुएट हमें ये सब नहीं पता होता, हमें इंडस्ट्री का नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता इवन वी डोंट नो कि इस इंडस्ट्री में किस एक्चुअली फील की या किस एक्चुअली जो है सर्टिफिकेशन की जरूरत है। तो ये की पॉइंट्स हैं जिसपे एज अ ग्रेजुएट
हमें वर्किंग और रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट्स को ये जो है नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, अब जो है मैंने ये करना है, और अगर चलो आप उस इंडस्ट्री में आ गए, उस फ़ील्ड में भी आ गए, सो व्हाट? आपने उस चीज़ को अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत क्विक करनी है कि मेरी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? वेयर आई एम लैकिंग, और इज़ दिस पॉसिबल टू कवर दैट लैकनेस? और ये नहीं हो सकता, सो आई हैव टू स्विच ऑन दी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। या तो मैं फिर अल्टरनेटिव देखूँ, अगर आई एम नॉट एनालिटिकल साइड, सो आई विल बी ऑन गुड ऑन क्रिएटिव साइड। ऐसे बहुत से लोग होते हैं एनालिटिकल टू क्रिएटिव सर्च करते हैं, क्योंकि वो अपनी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मेजर कर चुके होते हैं। सो Perfect. दिस इज Totally द थिंग। हाँ। perfectly highlighted those pointers. As a matter of fact, you need to also understand कि सिर्फ graduation की डिग्री लेके अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं, so you sometimes need good skills as well. और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको अपना अपना स्किल सेट और जो भी आप कोर्सेज या जो भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की चीज़ें कह रहे हैं उसको आपको बेचना आना चाहिए इन अ लेमैन टर्म. That comes to another very key factor of communication, community building, या आप उसको कह लो कि connection building. A lot of people, what I'm seeing right now, अगर मैं लड़कियों की बात करूं, I'm seeing a lot of individuals who are doing very good job in the industry, but there are still people who are just getting good CGPAs and getting married and not doing anything. What I personally believe कि if you are investing your 4 or 5 years of graduation, then you're investing your 2 or 3 years of masters, you should invest your time into the specific field just to get a experience out of it. ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जितना लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक उतनी ही लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैव देयर ओन पर्सनल प्रोफाइल. ठीक है, अब होता ये है कि लिंक्डइन यूजली plays a very initial part in it. What I'm seeing right now, a lot of the students in the Gen Z uh, environment कह लें, in the जो Gen Z की जनरेशन है, ठीक है, they are more on their different social media platforms. They are using Snapchat, they're using Instagram and other platform as well. But till the date, LinkedIn is a very professional platform. And एग्जैक्टली। we need to understand कि there should be a professional profiling. ठीक है, कि आप किस तरीके से प्रोफेशनली रीच आउट करते हो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि रिमशा इकबाल की पर्सनल प्रोफाइल क्या है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, that's a totally different lifestyle, the one that they have on their LinkedIn. A lot of people don't have LinkedIn, students. A lot of people don't understand कि connection building कितना help out करेगी. A lot of people don't understand कि यार लाइव इवेंट्स पे जाके रियल कनेक्शन बिल्डिंग क्या पर्पस होता है. बिकॉज यू नेवर नो इफ यू कनेक्ट विद अ पर्सन एंड योर स्किल सेट्स मैच. मे बी उसके पास अभी जॉब ना हो, अगर आने वाले 6-8 महीनों में उसके पास कोई ओपनिंग आती है, तो ही माइट रिमेम्बर कि चलो ठीक है यार, उमैर और रिमशा या XYZ कोई बंदा या बंदी एग्जिस्ट करती है जिसको मैं रीच आउट कर सकता हूँ. एंड दिस इज हाउ 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 इंडस्ट्री वर्क. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात करूँ, ये तो कोई इतनी बड़ी है भी नहीं. ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई जानता है कि ठीक है यार, वो यहाँ काम करता है, मेरा दोस्त वहाँ काम करता है, एंड वाइस वर्सा. आपको कोई कनेक्शन मिल जाता है. ठीक है, दैट कैन हेल्प यू लीड to good communication, that can help you lead to convert good clients, or maybe sometime help you in your job regarding to it. So how you think LinkedIn plays an important part in your life, how you are using it to upskill your overall personality, upskill your overall professional profile, and upskill your overall community building. ठीक है, because what I personally believe, a lot of people usually think कि ठीक है, जो अभी आपने बोला कि वो 10-10 15-15 साल से एक ही जगह काम कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू इवॉल्व. ठीक है, दे आर डूइंग जस्ट लाइक अ सर्कल, कि बस वो एक काम कर रहे हैं और वो पूरे 40 साल से वही काम कर रहे हैं. ठीक है, वो शायद सही हो भी सकता है उनके लिए. ठीक है, लेकिन जिस जिस हिसाब से हमारी फील्ड बढ़ रही है, जो फील्ड्स इवॉल्व हो रही है, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्चुअल प्रेजेंस बहुत होनी चाहिए. बिकॉज यू कांट बी अवेलेबल फॉर 24/7. लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब उनको उसकी उस काम की स्पेसिफिक जरूरत है, तो उनको पता हो गया शी इज द पर्सन और ही इज द पर्सन हु इज अ गुड फिट फॉर दैट पोजीशन. So how you are using the overall LinkedIn connection building, your overall professional profile to upscale your overall thing? Is it something, are you from that student background जहाँ पे आपने कहा कि ठीक है यार, ग्रेजुएट हो जाएंगे फिर LinkedIn बनाएंगे. ठीक है, are you something कि यार नहीं यार, इस चीज को समझना जरूरी है, you started off, आप
कि प्रॉपर किस तरीके से रही, आपने किस तरीके से उसको प्लान करा, किस तरीके से प्लान कर दो रिगार्डिंग टू लिंक्डइन, रिगार्डिंग टू कम्युनिकेशन बिल्डिंग? ओके, मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही पिक करूंगी, दैट आई वाज अ स्टूडेंट जिसे लिंक्डइन का इतना आइडिया नहीं था। अगेन, आई हैव ग्रेजुएटेड, ठीक है, ग्रेजुएट कर लिया, इतना ज़्यादा लिंक्डइन का फोकस मैंने कभी लिया देखा नहीं। और ऑब्वियसली मुझे कोई इस तरह से एक इंफॉर्मेशन जो कहते हैं ना लिंक्डइन की थी नहीं। तो वो वाली साइड ऑब्वियसली आई डेंट एक्सप्लोर एट फर्स्ट, बट काम करना शुरू किया, जॉब भी मिल गई, जॉब में बहुत सारी अचीवमेंट भी आना शुरू की। बट देन आई रियलाइज दैट कि यार ठीक है ये मैं कर रही हूँ, बट आई एम नॉट फिर कि मैं इसको कहीं एक ड्राफ्ट नहीं कर रही कि मैं यार मैं एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ, हम्म। बिकॉज आई एम अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देयर इज अ मिसिंग, आई एम नॉट ड्राफ्टिंग। When I, one of my colleagues said that हम्म। you are doing a very well job, so why aren't you, showcasing your skills on LinkedIn? So I said, yes, I do have a LinkedIn profile, but I'm not using it. She said, no, you have to. No, you have to. So I said, okay, I have to. I start using LinkedIn, और yeah, उसके बाद I thought that कि हाँ, it's very important for the network building. It's very important for the connection. It's very important if it's very important for your career as well. It plays a important role. Let's suppose I came to the this side of the campaign planning side in Nahid, and I started connected with the brands, and brand के साथ connected करते हुए when you showcasing your the work on the LinkedIn, I start posting on the LinkedIn कि ठीक है, that was my campaign, the campaign, and I achieved these brands, and these brands onboarded with me in this campaign. Then I had a Mother's Day campaign. Then I have a OND October, November, December campaign, 11-11 जैसे कहते हैं. So क्या हुआ उसका रिजल्ट? सो व्हाट आई गेट इज दैट कि मुझे दूसरे ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, other alliances and the partners started approaching me. So what I get from all of this thing कि यार no, LinkedIn is very important. अगर आप नहीं बताओगे कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, तो आप से relevant person connect नहीं हो सकता. For the graduate student, it's very important. Yes, it's very important कि आपका LinkedIn पे प्रोफाइल होना ज़रूरी है, एंड उस पे आपको अपडेट रखना भी अपनी स्किल्स, along with your GPA, जो भी है आपकी GPA से मैटर, जो मैं समझती हूँ जो मैटर करता है, दैट इज व्हाट यू आर अचीविंग इन रियल टाइम. आप क्या कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, किसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड हो, कोई आप जो है वॉलंटियरली काम कर रहे हो. सो दीज थिंग्स आजकल हमारे पास, द गुड थिंग इज दैट अभी अगर आप 5 years बैक अगर देखें तो वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एमटीओ वाली, हम्म। दैट हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनी जो प्रोग्राम आजकल जो कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड. आई अप्रिशिएट टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस, दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो ये काम कर रही हैं, और वो लिटरली मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसको रन कर रही हैं. सो इससे क्या हो रहा है, एक्चुअली वी आर डूइंग सेम थिंग एज वेल, नाहिद भी यही करता है. सो इससे क्या हो रहा है, दोज लाइक वो ग्रेजुएट्स जो ये समझते हैं कि लिंक्डइन इज नॉट इज नॉट यार यूजफुल. इट्स नॉट लाइक दैट. आप अपनी वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर कर रही है, वो आप जो है ना मिस कर रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ इवन कि ग्रेजुएट्स को इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दैट आपको इस पे अपनी स्किल्स, अपनी जो भी लर्निंग है एंड एक्सपीरियंस है, यू नीड टू शेयर ऑन दैट. प्लीज डोंट मेक इट इंस्टाग्राम. ऑब्वियसली हमारी जो जेंजी करती है आजकल, वो इंस्टाग्राम बना दे रही है लिंक्डइन को. डोंट मेक इट इंस्टाग्राम. Just make it as your professional profile, so that a relevant person can connect with you and can give you the opportunity that you deserve. So this is the point. I think LinkedIn is very important.
in every aspects for your professional life. Perfect. Thank you so much, Rimsha. I think we have covered a lot of things in the session. As a Yeah. matter of fact, to understand कि real life में grocery stores किस तरीके से grow कर रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव होता है, वी ऑल्सो हाईलाइटेड कि इट्स नॉट इजी टू बिकम अ मदर एंड इट्स नॉट इजी Yeah. टू बिकम अ मदर एंड वर्किंग विद दैम एंड you showcasing your overall experience in that. So I personally believe a lot of people can learn from it and they can vouch for it if they need any help. So thank you so much, Rimsha, for your time. I really appreciate Thank it and you. hopefully लोग इससे काफी सारी चीजें सीख सकेंगे और कुछ important pointers इकट्ठे कर सकेंगे.